Welcome students to your next and probably the last lecture of electrochemistry. We finished our last lecture on discussion of primary cells. So today we will be taking up the secondary cells. Secondary cells, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, that these are those cells which can be recharged, जिनको हम दोबारा से रिचार्ज कर सकें, and hence can be used time and again, और बार बार उनको हम यूज कर सकेंगे. तो सेकेंडरी सेल को अगर हम डिफाइन करें, सेकेंडरी सेल ए डिवाइस विच कैन स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी as in the form of chemical energy. जो डिवाइस आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर सके इन द फॉर्म ऑफ ए केमिकल एनर्जी, और जब हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी की आवश्यकता हो तो हम उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज कर सकें बाय यूजिंग दैट डिवाइस, ऐसे सभी सेल्स को हम बोलते हैं सेकेंडरी सेल्स. एंड वन ऑफ द मोस्ट commonly employed secondary cell which we use in automobiles, inverters, etc., that is lead storage battery. Lead storage battery or lead accumulator, you can call it as lead accumulator. Accumulate का मतलब इकट्ठा करना होता है, so because it is storing the electrical energy in the form of chemical energy, so it is called lead accumulator also. The construction of this cell is this outer container, it is made up of ebonite. It contains a lead grid filled with spongy lead which will act as an anode, and a grid of lead filled with lead dioxide which will act as a cathode. These plates are separated by a perforated separator which is generally perforated plastic fiber or glass. Sulfuric acid 38% by mass or having specific gravity 1.31 gram per centimeter cube, that will be used as electrolyte in this cell. So this is what about the construction of this lead storage battery. ये इसकी construction है. Now when we will be using it as an electrochemical cell, जब हम इसको electrochemical cell की तरह यूज करेंगे तो रिएक्शंस क्या होंगी? At anode, your lead will combine with sulfate ions furnished by the sulfuric acid to give you lead sulfate solid plus 2 electrons, and this lead sulfate which is formed as solid, it will stick to the plate of this lead grid पे, यहीं पे स्टिक कर जाएगा ये, it will not fall down. अगर ये नीचे गिर गया तो फिर ये आपका जो है रिवर्सिबल नहीं रहेगा. At cathode, the reaction is your PbO2 plus 4H plus sulfate ions plus 2 electrons to give you PbSO4 solid plus 2 H2O. The overall reaction for this cell, overall reaction, ऐड कर दीजिए आप इसको, it will become Pb plus PbO2 plus 4H plus 2SO4 minus 2, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, it will give you 2 PbSO4 solid plus 2S2. This will be your next cell reaction. अगर हम इस सेल रिएक्शन को देखें तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं? That your sulfuric acid is consumed during the reaction. रिएक्शन के दौरान आपका सल्फ्यूरिक एसिड क्या हो रहा है? वो कंज्यूम हो रहा है. तो धीरे धीरे आपके सल्फ्यूरिक एसिड की जो कंसंट्रेशन होगी इसमें सेल के अंदर, वो डिक्रीज करती चली जाएगी. और जब ये कंसंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ड्रॉप करते करते इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, इफ इट फॉल टू 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1.2 gram per centimeter cube or below this, then we will say that your cell has exhausted. ये आपका सेल क्या हो गया है? एग्जॉस्ट हो गया. नाउ इट कैन बी
not used as an electrochemical cell. It require recharging. Then when we will be recharging it, इसको जब हम recharge करेंगे तो this cell will not work as an electrochemical cell but it will work as an electrolytic cell. तो हम क्या करेंगे, इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसको सप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस होगा इसके अंदर और ये रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी. These reaction will be exactly reversed. ये ध्यान रखना है बस उसके अंदर, ये पॉजिटिव के साथ यहाँ नेगेटिव और यहाँ नेगेटिव के साथ पॉजिटिव, तो ये रिएक्शन आपकी रिवर्स हो जाएंगी बिल्कुल. जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा तो नेगेटिव टर्मिनल जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दिखा रखा है उसके साथ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉजिटिव के साथ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द चार्जर को जोड़ के हम इसको चार्ज करेंगे और ये रिएक्शंस एग्जैक्टली रिवर्स हो जाएंगी. आपका जो लेड सल्फेट यहाँ पे स्टिक किया था वो वापस कन्वर्ट हो जाएगा लेड में, और जो यहाँ स्टिक किया था वो वापस कन्वर्ट हो जाएगा लेड डाइऑक्साइड के अंदर. और जब आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ते बढ़ते वापस 1.31 पे आ जाएगी तो हम कहेंगे दैट योर सेल हैज बीन रिचार्ज्ड एंड इट इज रेडी फॉर यूज एज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. अब इसमें ये ध्यान रखना है जब हम इसको रिचार्ज करते हैं तो रिचार्ज करने के दौरान ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह काम कर रहा है, तो इसमें से कुछ गैसेस निकलती हैं. क्यों निकलती हैं गैसेस? ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर. चार्जिंग के दौरान, ड्यूरिंग चार्जिंग, जब आप इनकी चार्जिंग करेंगे ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस निकलेगी इसके अंदर. सो धीरे धीरे क्या होगा, इस लेड एक्यूमुलेटर के अंदर पानी कम होता चला जाएगा. दैट इज वाई दिस lead storage battery require a constant addition of water after certain time due to loss of water in the form of hydrogen and oxygen due to electrolysis of water taking place during the charging process. But nowadays you might have seen that we are using sealed batteries. जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकल रही है तो ये बैटरी सील नहीं हो सकती. जो कॉमनली हम बैटरी यूज करते हैं अनसील्ड बैटरी यूज करते हैं. आजकल मार्केट में सील्ड बैटरीज भी आती है. सील्ड बैटरीज में फर्क सिर्फ इतना होता है जो इलेक्ट्रोड है दैट इज मेड अप ऑफ ए कैल्शियम एंड लेड अलॉय and that do not allow the electrolysis of water. वो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर को अलाउ नहीं करता, तो आपकी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं निकलती. वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं होगी तो वाटर का अमाउंट भी कम नहीं होगा, सो दैट विल नॉट रिक्वायर एडिशन ऑफ वाटर. तो आप उसको सील कर सकते हैं ऊपर से कंप्लीटली. तो वो थोड़ी सी कॉस्टली है, मार्केट में मिलती है आपको सील्ड बैटरी. सील्ड बैटरी में सिर्फ यही फर्क है कि यहाँ पे लेड यूज कर रहे हैं हम, वहां पे कैल्शियम लेड का अलॉय यूज करेंगे फॉर मेकिंग द इलेक्ट्रोड. So this is about the lead accumulator. Another important secondary cell is your Nicad cell, which is also called nickel cadmium cell. This cell has a longer life compared to your lead storage battery. लेड स्टोरेज बैटरी में क्या होता है कि लेड स्टोरेज बैटरी को अगर हम बहुत समय तक डिस्चार्ज छोड़ दें विदाउट चार्जिंग इट तो उसकी ग्रिड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा हार्ड लेड सल्फेट की लेयर बन जाती है और उसके बाद फिर उसको रिचार्ज करना मुश्किल हो जाता है. सो एज कंपेयर टू लेड स्टोरेज बैटरी दिस निकाइड सेल हैज ए बिट लॉन्गर लाइफ, ऑल्दो इट इज ए बिट एक्सपेंसिव देन द लेड स्टोरेज बैटरी. इसके अंदर सेल के अंदर कंस्ट्रक्शन क्या है, ये हमारा जो है कंटेनर, ये कैडमियम कंटेनर है. इट विल एक्ट एज एनोड, act as anode. There is a metal grid in which nickel 3 compounds are filled. इसमें जो कंपाउंड है वो जनरली हम जो है इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ NiO2 और आपका NiOH होल ट्वाइस ये यूज करते हैं. कहीं पे ये ऐसे भी लिखा होता है NiOH होल थ्राइस, एनसीईआरटी में NiOH होल थ्राइस दिया हुआ है, बट इट इज इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ NiO2 एंड NiOH होल ट्वाइस. तो इसके अंदर हमने जब ये सेल और जो इलेक्ट्रोलाइट है इस सेल के अंदर दैट इज 21% KOH सॉल्यूशन, ये इसका इलेक्ट्रोलाइट है. जब ये सेल आपका काम करेगा एज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तो एनोड पे देयर विल बी ऑक्सीडेशन ऑफ कैडमियम. कैडमियम सॉलिड विल कंबाइन विद
2OH minus, it will give you CdOH whole twice solid plus 2 electrons. ये solid product है, so it will adhere to the electrode. At cathode, NiOH whole thrice, which can also be written as NiOOH H2O, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस इलेक्ट्रॉन, इसकी रिएक्शन होगी, इट विल गिव NiOH whole twice प्लस OH माइनस. तो जब आप इस रिएक्शन को, दोनों रिएक्शंस को जोड़ देंगे तो नेट सेल रिएक्शन आ जाएगी आपकी. और तो इस सेल में एक इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है, यहां 2 यूज हो रहे हैं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम इसको जोड़ देंगे दोनों को, रिएक्शंस को. तो ये हमारा हो जाएगा CD सॉलिड. जब इस रिएक्शन को 2 से गुना करेंगे तो यहाँ 2OH हो गया, यहाँ पे भी 2OH हो गया, तो ये कट जाएंगे आपके. प्लस आपका आया 2 NiOH whole thrice to give, इलेक्ट्रॉन्स कट गए दोनों, it will give you CdOH whole twice solid plus NiOH whole twice solid. क्योंकि प्रोडक्ट आपके सॉलिड है, they will adhere to the electrode, and when this cell is have to be recharged, the reaction will be reversed. ज्यादा डिटेल में हमने इसके बारे में नहीं जाना, मैंने आपको बस रिएक्शन बता दिया और रफली एक कंस्ट्रक्शन बता दिए कि इस सेल की कंस्ट्रक्शन क्या है. ज्यादा डिटेल में हमारे यहाँ नहीं है, तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है जितना कराया गया. सो दिस इज योर सेकेंडरी सेल. दूसरा सेकेंडरी सेल पिकार्ड सेल जिसको हम बोलते हैं. नाउ आफ्टर दिस द थर्ड टाइप ऑफ सेल्स. एक चीज ध्यान रखिए कि इनकी जो लेड एक्यूमुलेटर है, इसकी जो एफिशिएंसी है दैट इज अप्रॉक्स 80%, जो सेकेंडरी सेल है. और किसी भी सेल की एफिशिएंसी जो होती है दैट इज सिंपली द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड बाय इट व्हेन इट इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दैट इज ड्यूरिंग डिस्चार्ज, एंड द टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द चार्जिंग डिवाइडेड बाय दिस. सो दैट इज द एफिशिएंसी ऑफ सेल को अगर हम निकालें तो टोटल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइड during discharge divided by total electricity consumed during charging and multiplied by of course 100. अगर परसेंटेज में निकालनी है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे and you will be getting the percentage efficiency of that accumulator. lead accumulator की जो percentage efficiency है that is approx 80%. तो ये एक आध चीज थी जो आपने ध्यान रखनी थी. नेक्स्ट जो हमारे पास सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हमने बताई थी सेल्स के अंदर, that is your fuel cell. फ्यूल सेल हमने बताया था कि फ्यूल सेल्स वो डिवाइसेस होती हैं जो किसी भी फ्यूल की कंबस्शन एंथैल्पी को डायरेक्टली बदल देती है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, which convert enthalpy of combustion of a fuel directly into इलेक्ट्रिकल एनर्जी. उन सबको हम फ्यूल सेल बोलते हैं. जो कॉमनली एम्प्लॉयड फ्यूल सेल है which was also used in Apollo mission, that is hydrogen oxygen fuel cell, and this is the cell which we have to discuss. So what is the construction of this cell and what are the reactions taking place at the anode and cathode, that we have to discuss. Let us draw
द फिगर ऑफ दिस सेल। फ्यूल सेल के अंदर हमने एक स्टेनलेस स्टील का कंटेनर लेना है। कैथोड और एनोड दोनों परफोरेटेड कार्बन के हैं। तो ये जो हमारा है परफोरेटेड कार्बन एनोड, impregnated with catalyst प्लेटिनम और प्लेटिनम। ये भी हमारा पोरस कार्बन कैथोड। इसके अंदर हमने कोबाल्ट ऑक्साइड, प्लेटिनम और सिल्वर एज ए कैटलिस्ट ऐड किया हुआ है। ये जो हमने बीच में ले रखा है सॉल्यूशन, ये आपका KOH सॉल्यूशन है, कंसंट्रेटेड। हम इसमें इधर से हाइड्रोजन गैस 50 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे इंजेक्ट करेंगे, इधर से ऑक्सीजन गैस 50 एटमॉस्फेयर पे इंजेक्ट करेंगे। जब रिएक्शन होगी तो ये वाटर विल बी फॉर्म्ड एज रिजल्ट ऑफ कंबस्शन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये सॉल्यूशन डाइल्यूट होता रहेगा। यहां से हम जो एक्सेस वाटर है वो निकालते रहेंगे। अपोलो मिशन के अंदर भी यही किया गया था, यही फ्यूल सेल यूज किया गया था। अब व्हाई वी हैव एडेड दीज कैटलिस्ट, वो कैटलिस्ट इसलिए ऐड किए गए हैं दोनों इलेक्ट्रोड के अंदर कि जो इस सेल का वर्किंग टेम्परेचर है फॉर अप्रोक्सीमेटली 425 केल्विन के आसपास, जो रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है दैट इज नॉट एज फास्ट एज रिक्वायर्ड। सो स्पीड अप द रिएक्शन, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने के लिए हमने दोनों इलेक्ट्रोड्स के अंदर आपके कैटलिस्ट डाले होंगे। जब ये फ्यूल सेल काम करेगा तो एट एनोड जो हमारा हाइड्रोजन है दैट विल गेट ऑक्सीडाइज्ड टू H2 गैस प्लस OH माइनस। It will give you water plus electron, 4 H2O plus 4 electrons. This will be the reaction at anode. यहां पे जो हाइड्रोजन जा रही है वो इस इलेक्ट्रोड पे एक्ट करेगी, आपका वाटर बनेगा, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन बनेंगे। और कैथोड पे आपकी O2 जो ऑक्सीजन है उसका रिडक्शन होगा, O2 प्लस H2O प्लस इलेक्ट्रॉन, इट विल गिव यू OH माइनस, 2 OH माइनस बन जाएगा आपका। तो अगर आप यहां पे 2 वाटर ले तो यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन थे तो 2 वाटर, 4 इलेक्ट्रॉन ले तो 4 OH माइनस बन जाएगा। अब इन दोनों रिएक्शंस को अगर हम जोड़ दें तो हमारी दोनों की नेट रिएक्शन क्या हो जाएगी? नेट रिएक्शन, नेट रिएक्शन अगर इसको जोड़े हम तो हमारी रिएक्शन हो गई 2H2 गैस प्लस O2 गैस, 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन करके 4 OH से 4 OH कर गए, और इधर 4 वाटर, इधर 2 वाटर, तो इधर आ गए 2 वाटर, 2H2। तो ये हमारी नेट रिएक्शन हो जाएगी इस फ्यूल सेल के अंदर। और आपको इससे जो EMF मिलेगी फ्यूल सेल से, इट इज 1.18 वोल्ट। इस फ्यूल सेल की जो EMF है 1.18 वोल्ट है। तो ये सॉल्यूशन डाइल्यूट होता रहेगा, पानी को आप बाहर निकाल देंगे तो वो पानी आप जो है यूज कर सकते हैं। सो दिस इज द फ्यूल सेल एंड वर्किंग ऑफ द फ्यूल सेल। अब इस सेल की कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है? इसके अंदर फिर से, जैसा कि मैंने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में बताया था, फिर से वही चीज है। यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन है विच इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन विच इज ए गैस,
solution KOH का, that is a liquid, and this is solid. So again we have to make a contact between solid, liquid and gas, which is very very difficult. बहुत मुश्किल है. वैसे तो ये कॉम्पैक्ट होता है सर, लेकिन इन तीनों के बीच में एक प्रॉपर कॉन्टैक्ट बना के रखना वो बहुत मुश्किल काम है. सेकेंडली, इसके अंदर जो ये कैटलिस्ट यूज हुए हैं, दीज कैटलिस्ट आर क्वाइट कॉस्टली, बहुत कॉस्टली है ये. प्लैटिनम, पैलेडियम, सिल्वर, प्लैटिनम, दीज आर वेरी कॉस्टली सब्सटेंसेस, सो दैट इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ द सेल. लेकिन इस सेल के कुछ फायदे भी हैं. फायदा क्या है? पॉल्यूशन फ्री है, बिकॉज योर नेट रिएक्शन इज 2s2 plus O2 to give 2s2. There is no pollution at all, water is being produced. Secondly, in this source of electricity there is no moving part, तो VS and TS की समस्या नहीं है. This cell has a very high efficiency. अगर हम किसी फ्यूल सेल की एफिशिएंसी निकालें तो नीटा बराबर होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, that is delta G, decrease in free energy by delta H. अगर हम इसको थ्योरेटिकली कैलकुलेट करेंगे हाइड्रोजन की कंबस्शन एंथैल्पी को लेके, तो लगभग 94% के आसपास इसकी पैकिंग वो आती है एफिशिएंसी ऑफ दिस सेल. सो दिस सेल इज क्वाइट एफिशिएंट एज वेल, कॉम्पैक्ट है, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है. ये इस सेल के एडवांटेज है. दिस इज द फ्यूल सेल which we have to discuss. Apart from hydrogen oxygen fuel cell, there are other fuel cells also. Hydrogen oxygen fuel cell, methane oxygen fuel cell. There are other fuel cells also, but the most important one and more useful or used one is this hydrogen oxygen fuel cell. So this is about the fuel cell. So now the last topic of this chapter, that is corrosion and methods of protecting metals from corrosion. We are going to discuss that last one, the last chapter of corrosion, and last topic of this chapter, that is corrosion. Corrosion, what is meant by corrosion? What is corrosion? Corrosion is a general term used for processes or for process in which a metal form compounds such as oxides, carbonates, hydroxide, etc. on exposure to atmospheric conditions for a long period of time. For a long period of time, लंबे समय तक जब हम मेटल को एक्सपोज करें एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के साथ, तो जो आपकी कंपाउंड फॉर्मेशन होगी उसको हम कहेंगे कोरेजन. फॉर कोरेजन ऑफ आयरन we use term रस्टिंग. आपने ये देखा होगा, जैसे कई जगहों पे कॉपर या ब्रास के जो आपके कॉपर और ब्रास के जो कंटेनर्स होते हैं उनके ऊपर हरा हरा कुछ जम जाता है, वो भी कोरेजन है कॉपर का. वो बेसिक कॉपर कार्बोनेट डिपॉजिट होता है उसके ऊपर. लोहे की जंग आपने देखी है. नाउ हाउ दिस कोरेजन टेक प्लेस? The process of corrosion is quite complex, but still a theory has been proposed for corrosion. We will be discussing it for rusting of iron, and that is called electrochemical theory.
of rusting. So the next is electrochemical theory of rusting. ये थ्योरी क्या कहती है? मान लीजिए हमारे पास कोई मेटल पीस है, मेटल पीस अनइवन सरफेस होता ही होता है मेटल सरफेस पे। तो ये थ्योरी ये कहती है कि जो मेटल में इंप्योरिटीज होती हैं, इंप्योरिटीज लेस रिएक्टिव देन आयरन, they make up cathode and pure iron, मान लीजिए इस रीजन के अंदर आपका, इसको हम एनोडिक रीजन कहें, यहां पे आपका प्योर आयरन है, दैट एक्ट एज एनोड, और यहां पे जो आपकी वाटर ड्रॉपलेट्स ट्रैप हो गई या मॉइस्चर ट्रैप हो गया यहां पे, दिस मॉइस्चर विल take up carbon dioxide or other gases from the atmosphere, dissolve it to form carbonic acid. ये आपका less impurities है, ये आपका कैथोडिक रीजन है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग के हिसाब से मेटल सरफेस के ऊपर छोटे छोटे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की फॉर्मेशन हो जाती है। स्मॉल टाइनी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आर फॉर्म्ड, जिसके अंदर जो आपका प्योर आयरन है दैट विल एक्ट एज एनोड, impurities which are less reactive than iron will act as cathode, and the carbon dioxide or the other gases from the atmosphere dissolved in water, they will act as an electrolyte. Mainly we will be considering this. तो आपका जो ये इलेक्ट्रोलाइट बना H2CO3, ये डिसोसिएट होगा H प्लस SCO3 माइनस में, दो स्टेप डिसोसिएशन होती है इसकी, SCO3 माइनस प्लस H प्लस CO3 2 माइनस। तो आपके आयंस बन गए ड्यू टू डिसोसिएशन ऑफ कार्बोनिक एसिड और ड्यू टू सम डिसोसिएशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल आल्सो, वाटर आल्सो डिसोसिएट टू गिव OH, H प्लस एंड OH माइनस। तो ये जो हमारे छोटे छोटे सेल बने, टाइनी सेल बने, इनको हम बोलते हैं कोराइजन सेल और कोराइजन कपल। जब ऐसे सेल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी तो आपके एनोडिक रीजन के ऊपर क्या रिएक्शन होगी एनोड की? एट एनोड योर आयरन विल गेट ऑक्सीडाइज टू गिव फेरस आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। दीज फेरस आयंस विल बी फॉर्म्ड। इसका अगर हम E0 देखें तो इसका E0 है -0.44 वोल्ट। ये हमारी एनोडिक रीजन पे रिएक्शन हुई। और जो ये हमारे H आयन बने हुए हैं which are being supposed to be available by these electrolytes, ये हमारी कैथोडिक रीजन पे जाएंगे। एट कैथोड आपकी रिएक्शन क्या होगी? H प्लस इलेक्ट्रॉन ये H देगा। और अब यहां पे ये ध्यान रखना है कि ये जो H प्लस है इट विल नॉट बी रिड्यूस टू हाइड्रोजन गैस। रीजन बीइंग द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर दैट रिएक्शन इज ओनली 0.04 वोल्ट, बट द रिएक्शन फॉर दिस H प्लस विल बी, आपके जो ये H प्लस है दे विल बी कंबाइनिंग विद 2H प्लस हाफ O2 प्लस इलेक्ट्रॉन, दे विल बी फॉर्मिंग H2, वाटर बना देंगे। और इस रिएक्शन के लिए अगर हम इसको दो करें, दो इलेक्ट्रॉन, तो आपके जो है इसकी जो E0 है वो प्लस 1.23 वोल्ट है, विच इज मच हायर देन द रिडक्शन फॉर हाइड्रोजन गैस। H प्लस आयन की रिडक्शन हाइड्रोजन में उसके मुकाबले में इस रिएक्शन का जो आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है दैट इज मोर, सो रिएक्शन विल टेक प्लेस। आई थिंक
ये जो आपकी इसका 1.23 वोल्ट है, इसका 0.14 वोल्ट है। तो ओवरऑल अगर आप ई सेल निकालेंगे इसकी, तो जो ई सेल आ जाएगी आपकी, ई सेल विल कम आउट टू बी प्लस 1.67 वोल्ट। तो दिस इज a very favorable condition for your reaction to occur। तो ये रिएक्शन होगी। अब इन दोनों रिएक्शंस को अगर हम जोड़ दें तो वो हमारी ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगी। वो हमारी क्या आ जाएगी? ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगी। इस रिएक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ किताबों में क्या लिखा हुआ, ये रिएक्शन लिखी हुई है और फिर इसके साथ 2H प्लस हाफ ऑक्सीजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन करके भी रिएक्शन लिखी हुई है। तो आप किसी भी तरीके से रिएक्शन लिख सकते हैं। आई विल बी प्रेफरिंग टू राइट दिस रिएक्शन। ये हमारी रिएक्शन है, तो ओवरऑल रिएक्शन इन दोनों रिएक्शंस को आप जोड़ देंगे। उसके बाद क्या होगा, जो ये हमारे फेरस आयन बने, these ferrous ions will be moved through the solution। ये इस सॉल्यूशन में मूव करेंगे and there they will come in contact with aerial oxygen। वहां पे ये aerial oxygen के साथ कांटेक्ट में आएंगे and they will get oxidized to ferric ion। एयर के अंदर क्या होगा इनका, जो हमारी 2Fe2 प्लस हाफ O2 प्लस 2H2O, ये फेरस आयन जो है आपके मूव करे सॉल्यूशन में और वहां पे जाके एयर से रिएक्ट करे, Fe2O3 बनेगा प्लस 4H प्लस बन गया। और ये जो Fe2O3 है, it will then take up the X water molecule of hydration and they will form hydrated ferric oxide which is your rust। ये आपकी रस्ट है, this is your rust। तो ये आपकी रस्ट जो है आयरन पे स्टिक कर जाएगी और ये बहुत मतलब वीकली स्टिक करती है आयरन के साथ। तो झटका लगते ही नीचे गिर जाती है, तो फिर दोबारा से मेटल एक्सपोज हो जाता है, वहां पे फिर रस्टिंग हो जाती है। तो आयरन के केस में रस्टिंग नुकसानदायक है कि इट ईट अवे द मेटल स्लोली, लेकिन ऐसा नहीं है कि रस्टिंग या कोरेजन हर जगह हानिकारक होता है। एल्युमिनियम के केस में इट इज बेनिफिशियल, क्योंकि एल्युमिनियम में जब ये कोरेजन होता है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड की बड़ी हार्ड लेयर बन जाती है एल्युमिनियम पे, दैट फर्दर स्टॉप द कोरेजन ऑफ द एल्युमिनियम मेटल। नाउ since these rusting of iron or corrosions of metal in some cases are not beneficial to us, do we wish to protect metals from corrosion? So how to protect metals from corrosion? There are 3 types of protection from corrosion. The first one is called barrier protection। Barrier protection, as the name itself indicates, barrier का मतलब रुकावट। अगर हम आयरन का एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ किसी भी तरीके से संपर्क खत्म कर दें, एक बैरियर क्रिएट कर दें बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड आयरन, तो हमारी corrosion of iron will stop। कैसे अचीव करते हैं प्रोटेक्शन? पेंटिंग कर सकते हैं हम, आयरन को पेंट कर दीजिए आप, so there will be a thin film of paint between the iron and the atmospheric condition, there will be no reaction, so no corrosion। You can apply oil, grease or certain other compound like bisphenol etc। You can apply certain less reactive metal और metals which do not corrode, उससे कोट कर सकते हैं आप आयरन को। तो ये मेथड्स हैं जिनमें आप इसको कोटिंग विद लेस रिएक्टिव मेटल्स सच एज टिन, एल्युमिनियम एक्सेट्रा, जो कि खुद एटमॉस्फेयर के साथ रिएक्ट करा के एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देती है कंपाउंड का। सो दिस इज द बैरियर प्रोटेक्शन, कि आपने एक बैरियर पैदा कर दिया। दूसरा जो होता है दैट इज कॉल्ड सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। सैक्रिफाइस का मतलब होता है बलिदान करना। आपने आयरन को बचाना है, आप किसी और मेटल को सैक्रिफाइस कर दीजिए। जैसे आप लोग घरों में पानी की पाइपें देखते हैं, गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप्स होती है वो, उसके अंदर हम क्या करते हैं, आयरन को इलेक्ट्रोप्लेट कर देते हैं विद जिंक।
विच इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। तो अगर हम जिंक से प्लेट कर दें, इसको जिंक प्लेटिंग कर दें आयरन की, जिसको हम जीआई बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन, और गैल्वेनाइज्ड आयरन बोलते हैं उस आयरन को, जीआई पाइप, आप बहुत शब्द सुने होंगे आपने। तो इसमें क्या होता है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। तो ऑक्सीडेशन जब होगा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कोरेजन, वो जिंक का होगा बजाय आयरन के। तो आयरन आपका तब तक बचा रहेगा जब तक उसके ऊपर जिंक की कोटिंग है। ऑफ कोर्स अगर जिंक उसके ऊपर से इलेक्ट्रोप्लेटेड, अगर जिंक खत्म हो जाएगा तो उसके बाद आयरन का ही नंबर आएगा, बट द लाइफ ऑफ आयरन विल इंक्रीज। तो हमने क्या किया, आयरन को बचाने के लिए जिंक को क्या कर दिया, कुर्बान कर दिया। इसको कहते हैं सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। तीसरी होती है इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन। इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन में हम क्या करते हैं कि जो आयरन के ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे समुद्र के अंदर जो पाइपलाइन बिछती हैं, आयरन पाइपलाइन, उनके अंदर हम क्या करते हैं, थोड़ी थोड़ी दूर के ऊपर कनेक्टिंग वायर के साथ, कंडक्टिंग वायर्स के साथ मैग्नीशियम के बड़े बड़े ब्लॉक बांध के लटका देते हैं समुद्र में। तो मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम को टाई कर दिया आपने आयरन के साथ, सो मैग्नीशियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन आयरन। तो मैग्नीशियम जो है वो एनोड बन जाएगा और आयरन की जो पाइप है वो कैथोड बन जाएगी। तो अगर आपका आयरन की पाइप कैथोड बन गई तो नेचुरल सी बात है उस पर ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन नहीं हो सकता। तो जब तक आयरन का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, इट विल नॉट कोरेड। सो यू कैन आल्सो प्रोटेक्ट इट इलेक्ट्रिकली। इसको कैथोडिक प्रोटेक्शन भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन भी बोलते हैं। इसके अलावा एक चौथा तरीका है, कुछ हमारे पास ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस आते हैं जिनको अगर हम मेटल के ऊपर कोट कर दें तो वो भी आपकी एक हार्ड लेयर बना देते हैं अपनी सरफेस के ऊपर, आयरन के सरफेस पे, thereby protecting it from corrosion. So these are the methods of protecting corrosion. So this is all about this corrosion. Thank you very much. Hello everyone. If you found the content helpful, so kindly share this video with your friends. Also don't forget to